क्या आप या आपके परिवार में कोई डायबिटिक है? जानिए भारत के प्रसिद्ध डायबिटीज स्पेशलिस्ट से कि डायबिटीज को कैसे करें मैनेज। We have Dr. Rajneesh Saxena on diabetes पर चर्चा from RSSDI Ahmedabad. Dr. Saxena is diabetes and foot care specialist at Saxena Diabetes and Foot Care Center at Ajmer. Welcome Dr. Rajneesh on diabetes पर चर्चा. So doctor, if you can tell us what are the important complications of diabetes? Actually, madam, diabetes is very dangerous disease, and we all know there are microvascular and macrovascular both types of complications there. But 90% complications of diabetes are non-reversible. Mainly in case of eye complication like retinopathy is very common. There is chances of 3 to 4 times more chances of development of retinopathy in case of diabetes. So blindness is very common. Then chances of cataract and glaucoma is 3 to 5 times higher than normal citizens. In case of heart disease, there are 2 to 4 times more chances of developing heart problems in diabetic. Similarly, nephropathy and foot problem are very common. In case of foot, there are both microvascular changes and vascular involvement is there. Due to microvascular changes, there is neuropathy is very common. So chances of foot amputations are 50 times higher than normal amputation. If we consider diabetic foot, there are about every 30 seconds, one limb is lost due to diabetic all around the world, somewhere in the world. So diabetic foot care is very important. So how can we prevent diabetic foot problems? Actually, madam, in our patients, generally we see patients are going for beauty parlors for care of face, but foots are always neglected, and in case of neglected feet, foot problems are very common. So in 1975 when I was very small kid, उस समय एक गाना मैंने सुना था, एक मूवी देखी थी मैंने, शायद पाकीज़ा थी. उसके अंदर राजकुमार कहते हैं कि अपने पैर ज़मीन पे मत रखो, मैले हो जाएंगे. तो ये इंस्टेंस मुझे हमेशा पेशेंट को बताने के लिए मोटिवेट करता है कि पैर ज़मीन पे नंगे ना रख के, नंगे पैर ना चलें. और इन आवर कंट्री, इंडिया इज़ द रिलीजियस कंट्री, एंड देयर इज़ tradition of barefoot walking is very common. In our Gurudwara, temple, masjid, everyone is going without footwear, proper footwear. So I always insist patient to wear the proper footwear which is advised by the doctor. So footwear is very important. And in our country, we advise patient to go to the temple in the morning hours. In afternoon hours, patients, due to high temperature of the floor, patient can develop ulcer, because in diabetes there is neuropathy is very common. In case of neuropathy, there is insensate feet. In insensate feet, patient is unable to feel the temperature of the floor. So there is burning of plantar aspect of foot is very common. एक चीज़ अपन देखते हैं सबसे कॉमन होती है, हम देखते हैं नॉर्मल पर्सन्स आर वॉकिंग वेरी फास्ट ऑन द फ्लोर एट द टाइम ऑफ परिक्रमा इन गुरुद्वारा और टेम्पल, बट इन केस ऑफ डायबिटिक दे आर रनिंग वेरी स्लोली इजीली बिकॉज दे फेल टू फील द टेम्परेचर ऑफ द फीट ऑफ द फ्लोर. सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द पेशेंट who is suffering from diabetic neuropathy if he is running or walking very slowly, very peacefully. So it is very easy to identify these patients. In any other question, madam? Yeah, if अगर एक पेशेंट को कोई प्रिकॉशंस लेनी है कि उसको लेटर ऑन कोई फुट प्रॉब्लम्स ना हो या उसका पैर ना काटना पड़े, तो एक पेशेंट को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? Actually, madam, foot care is very important and very easy to apply in their lifestyle by the patient, because regular washing of foot is very important. After washing the foot, always apply proper suitable moisturizer, but always take care of the space between the two toes. अपने टोस के बीच में मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज
places become the pocket of the collection of infection. So infection is very common to enter from these sites. So always avoid moisturizer application between two toes. And secondly, nail care is also very important. Always cut the nail from the front and then file from the side of the nails. Secondly, if there is washing of footwear is there, so always take the water which is not too hot or not too cold. They should be very comfortable with the temperature of the water. So water का अपना temperature अपने elbow के ऊपर touch करके पहले feel कर ले. अगर temperature is suitable, then use it for the washing of the foot. Secondly, always wear proper sized footwear. The weight of the footwear should be less than 700 gram per pair, and size should be 1.25 centimeter lengthy than the lengthiest place of the foot, that is from the heel to the great toe, and the widest point at the first to fifth metatarsal space area, and it should be 1.25 centimeter lengthy. In other words, we can say the number of footwear should be one number higher than the Cambridge or Oxford footwear size. If number is 7, then patient should wear 8 number footwear. The sock should be without elastic, and the thickness of sock should be more than 20 shores. Shore is the measurement of the thickness of the cloth of the socks. So it should be more than 20 shores. It should be without elastic, because due to presence of elastic there will be chances of lacking of blood flow in the forefoot. So chances of deterioration of the condition of the if there is any venous insufficiency or arterial insufficiency there, so blood flow is lacking, so chances of atherosclerosis also increases. There will be lack of blood, so oxygen and glucose is not properly reaches the at the end of the toe, so chances of arterial insufficiency also increases. Similarly, always avoid hot or cold temperature. At the time of in cold weather, generally patients अपने हीटर के पास में अपना फुट रख लेता है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस. तो अपना सर्दियों के अंदर अपने टेम्परेचर्स को इंक्रीज़ करने के लिए या ठंड से बचने के लिए हीटर के पास या किसी हॉट ऑब्जेक्ट के पास अपने फुट को नहीं रखना चाहिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. सेकेंडली, ब्लैंकेट वगैरह है, इसको फुट के ऊपर डालना चाहिए. जनरली ड्यू टू एलोडिनिया पेशेंट जनरली अपना ब्लैंकेट वगैरह को फुट से ऊपर रख लेता है, बिकॉज इन केस ऑफ एलोडिनिया if something is touching to the foot, it will create a problem for patient. It is very unpleasant sensation feel by the patient. So always keep the footwear with blanket covering. In other case, if there is any injury, then always avoid antiseptics like Dettol, Savlon or hydrogen peroxide. Due to these antiseptic, in case of injury, the healing is delayed, because these antiseptic damage the nerve ending of the foot. Similarly, if there is ulcer, then always use normal saline and diluted betadine for washing the ulcers. And always avoid self-care of the nail. If we use or self-care of the cones, if we use blades or some other object, knife, etc., without if they are not sterilized, then they will create a problem for the patient. If patient cut the cone himself or herself, then there will be chances of infection at the cone site. So it will create a problem. Again, they will change into the ulcer, and ulceration will, if not heal, ulcer will not heal, then there will be chances of septic, gangrene. Ultimately, amputation is advised to save the life of the patient. So these are the important care which is taken by the patient.
Similarly, always avoid barefoot walking. These are the important. Okay. Thank you, Dr. Saxena. Thank you for giving us tips how diabetes patient can take care of their feet to avoid further complications in their later part of life. Thank you for coming on Diabetes Par Thank you. Charcha. Dr. Rajneesh, what is the role of family in the life of a diabetes patient? देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत एक पारिवारिक जीवन वाला देश है और यहाँ पे परिवार का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। जिस तरह हम पारिवारिक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, इसी तरह डायबिटीज़ के अंदर एक परिवार का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ परिवार में चलती है। हेरिडिटी फैक्टर्स का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि किसी परिवार के अंदर किसी बच्चे को डायबिटीज़ है तो उसकी माँ को सबसे पहले समझाना चाहिए, और उस माँ को या उसके पिताजी को डायबिटीज़ क्यों हुई, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर वो अवेयर नहीं थे। अगर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को अच्छी तरह अवेयरनेस होती तो वो अपने बच्चे को बचपन में गाइड करते, बचपन में एजुकेट करते, तो उनको डायबिटीज़ नहीं होती। उनको नहीं होती तो उनकी थर्ड जनरेशन भी डायबिटीज़ से बची रहती। इसलिए परिवार का इन्वॉल्वमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। किस तरह क्या खाना है, क्या पीना है। हम जैसे अपन देखते हैं बचपन में कि हमारी दादी जी या माता जी हमें समझाती थी कि बचपन में सुबह उठता है, फ्रेश होने जाना है, टूथपेस्ट करना है, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी दैनिक दिनचर्या की अंदर शामिल हो आती हैं। तो इसी तरह डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर माँ बाप एजुकेटेड होंगे, समझदार होंगे, तो समझाएंगे कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, किस तरह की डाइट रेगुलर खानी चाहिए, किस तरह व्यायाम करना चाहिए, मोबाइल गेम की जगह आउटडोर गेम की क्या इंपॉर्टेंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बता सकते हैं कि नशा किस तरह नुकसानदायक है, कोल्ड ड्रिंक्स के क्या हैजार्ड्स होते हैं। तो माँ बाप को एजुकेट करने से हम डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा जो IDF का टारगेट है कि 2030 के बाद में कोई भी नया बच्चा डायबिटीज़ के साथ ना हो, भारत डायबिटीज़ मुक्त हो। और डायबिटीज़ मुक्त करने के लिए अगर हमने उनके परिवार को उनके परिवार के माता पिता को, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को अच्छी तरह से समझाया, तो वो अपनी थर्ड जनरेशन को बता सकते हैं और डायबिटीज़ होने से हम रोक सकते हैं। और हम कह सकते हैं भारत 2030 के बाद में जो नए बच्चे जन्म लेंगे वो बिना डायबिटीज़ के होंगे और हमारा देश डायबिटीज़ मुक्त हो जाएगा। So that's really good information what the role of family is in the life of a diabetes patient. So हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत आसान है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए मैंने एक नियम बनाया है। बिकॉज डायबिटीज़ वर्ड डी स्टार्ट विथ डी, इट मीन्स ऑल डीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो मैंने 5D रूल बनाया है। पहला डी, उसके अंदर आता है डिसिप्लिन। तो विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन हमें खाना पीना, घूमना फिरना, हर चीज़ में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन के साथ अपन जीवन को गुजारेंगे तो डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल होगा। दूसरा डी आता है डेली फिजिकल एक्टिविटी, मतलब नियमित रूप से व्यायाम। हम नियमित रूप से व्यायाम करें, रोज़ किसी भी तरह से वर्कआउट कर सकें, साइकिलिंग, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग या जॉगिंग, किसी भी तरह आप करें, आप नियमित रूप से व्यायाम करें। बस इतना सा ध्यान रखें, WHO का फिट प्रिंसिपल है, पहले 5 मिनट वार्मिंग अप, फिर एक्सरसाइज फेज 30 मिनट के और लास्ट के 5 मिनट रिलैक्सिंग फेज। इस तरह अगर आप एक हफ्ते में 5 दिन भी कर लेते हैं तो आपके एक्सरसाइज का पूरा अपना प्रोग्राम हो जाएगा और आप काफ़ी हद तक अच्छी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप ये देखें कि लगातार 2 घंटे कहीं बैठ के काम नहीं करें, थोड़ा चक्कर लगा लें। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के पहले एक स्टेशन पहले मेट्रो से उतर जाएं, वहाँ उतरने के बाद के अंदर आप थोड़ा पैदल चल लें। तो इस तरह किसी भी फॉर्म में आप अगर एक्टिविटी करेंगे तो आपका डेली फिजिकल एक्टिविटी का टारगेट पूरा हो जाएगा। तीसरा डी आता है डाइट का। डाइट मतलब खाना पीना, और खाने पीने को अगर अपन ने संतुलित आहार लिया, अब बस इतना ध्यान रखना है। मैं मेरे किसी भी रोगी को कभी मैंने ये नहीं कहा कि साहब आपको ये चीज़ नहीं खानी है या ये नहीं खाना है। मैं कहता हूँ आप हर चीज़ लाइए, पर इस क्वांटिटी में लाइए कि जिससे आपको नुकसान ना हो। कितने कैलोरी अपने जा रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, फाइबर कंटेंट कितना होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए, ये डाइटिशियन सब बता देगी। बस बेसिकली इतना है, नियमित रूप से हरी सब्जियाँ खाएँ, फल का नियमित रूप से सेवन करें, घी तेल का उपयोग कम से कम करें, ड्राई फ्रूट वगैरह जहाँ तक वो कम से कम मात्रा में लें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉन वेज।
आजकल तो हम देखते हैं हमारे देश के नॉनवेज की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो नॉनवेज जहाँ तक को अवॉइड करें, रेड मीट स्पेशली। लेकिन यदि आपकी जीवनचर्या में शामिल है, कई समाज ऐसे हैं जहाँ पे नॉनवेज खाए बिना काम नहीं चल सकता, तो उनको रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। वाइट मीट थोड़ा लें, पर वो भी रोस्टेड लें, तला हुआ नहीं लें, तो आप काफ़ी हद तक अपना इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ें हैं। हम देखते हैं आजकल गर्ल्स कॉलेज तक के अंदर भी, गर्ल्स भी फेयरवेल में अल्कोहल लेने लगी हैं, तो ये सबसे ख़राब आदत है, इसको हमको बदलना है। हमको पूरे देश को एक नशा मुक्त देश के अंदर परिवर्तित करना है, जिससे हम अच्छा डायबिटीज़ कंट्रोल भी कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन फ्री भी रह सकते हैं। चौथा डी मैंने जो रखा है वो है डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन, क्योंकि डायबिटीज़ को हम कॉम्प्लिकेशन को 90% ऐसी हैं जो नॉन रिवर्सिबल हैं, तो उनको अपन रोक सकते हैं। जैसे ऊपर से नीचे तक सारे अंग रिस्क पे हैं। ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस 5 टाइम्स हैं। आंखों में अंधेपन की शिकायत 4 गुना ज़्यादा होती है। ग्लोकोमा कैटरेक्ट होने के चांसेस 5 गुना ज़्यादा हैं। तो नियमित रूप से साल में 1 बार जांच कराएं, जिससे आप अगर कोई आंखों में ब्लाइंडनेस आने के चांसेस हैं रेटिनोपैथी कारण, तो उसको रोक सकते हैं। ऐसी मुंह की सफाई का ध्यान रखें। सफाई नहीं रखेंगे तो मुंह के तो दांतों के अंदर भोजन के पार्टिकल अटके रहेंगे, मसूड़े में इन्फेक्शन होगा, मसूड़े की ग्रिप कमजोर होगी, दांत बाहर आ जाएंगे। हार्ट अटैक होने के चांसेस 4 गुना है। आपने सुना होगा कि सोते सोते डेथ हो जाती है, वो डायबिटीज़ में होती है, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक इज़ वेरी कॉमन। तो अब कभी भी पेशेंट के घबराहट हो, पसीना आए, तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। ये नहीं करना है, क्योंकि अपना इंडिया तो ऐसा है, हर आदमी कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेता है कि साहब मैंने कल बेसन खाया था या इस तरह की चीज़ खाई जिससे मेरे को घबराहट हो रही है। ऐसा नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद पेट में जलन, कब्जी, डिस्टेंशन, लूज मोशन, इंडाइजेशन बहुत कॉमन होता है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। दवाइयों पे मैं सबसे बाद में ध्यान देता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि खाने पीने का ध्यान रखें। हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, घी तेल की तली चीज़ कम से कम खाएं, दही छाछ का उपयोग ज़्यादा करें, और रात को सोने से पहले कम से कम थोड़ा घूम लें। अपने आदत क्या है, खाना खाया और टीवी के सामने बैठ गए, ये नहीं करना है। खाना खाने के बाद थोड़ा घूम लेंगे तो भोजन सेटल हो जाएगा और आपका खाना डाइजेस्ट होगा। पीछे किडनी है, किडनी खराब होने के चांसेस 18 से 23 गुना ज़्यादा है। और सबसे ख़राब चीज़ है, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ 50% किडनी डैमेज हो चुका होता है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है किडनी और डैमेज होता जाता है। पर अपने लिए ख़राब चीज़ क्या है, जब तक 80% किडनी डैमेज नहीं हो, बॉडी में कोई सिम्टम ही नहीं आते। सिम्टम आए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई अब तो डाइट कंट्रोल करो। जब अपने को किडनी डैमेज होने के बाद डाइट कंट्रोल करना है, तो आज से ही क्यों नहीं परहेज़ करें, जिससे किडनी डैमेज नहीं हो, अपन 100 साल अपने पैरों पर चल सकें, तो उसकी केयर करें। और एक छोटी सी जांच होती है यूरिन के द्वारा, यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, वो आप करवा लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे माइक्रो एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो पहले ही किडनी को डैमेज होने से फर्दर रोक सकते हैं। इसी तरह आपके शारीरिक अपने वैवाहिक जीवन के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पुरुषों और महिलाओं को अपने डॉक्टर से सारी बातें शेयर करनी चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण वैवाहिक जीवन के अंदर आपके ट्रबल हो सकती है। अपन भारत में रहते हैं जहाँ पे 7 जन्मों का संबंध होता है, इसलिए हम देखते हैं वाइफ हस्बैंड के साथ रहती है, लेकिन धीरे धीरे जो पाश्चात्यकरण हो रहा है, और वाइफ को भी वैवाहिक जीवन का पूरा तरह से सही ढंग से गुजारने का हक है। तो कभी भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि आजकल कई ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं, प्रोस्थेसिस आ चुके हैं, जो छोटे से सर्जरी के बाद में इम्प्लांट हो जाते हैं, तो उससे अपन वैवाहिक जीवन नॉर्मल गुजार सकते हैं। इसी तरह महिलाओं के शरीर में भी खुश्की हो सकती है, इससे हस्बैंड से कॉन्टैक्ट पेनफुल हो सकता है, और पेनफुल कॉन्टैक्ट से वैवाहिक जीवन में अड़चन आ जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसको सारी तकलीफ बचाएँ। उसके बाद में पैरों की प्रॉब्लम सबसे कॉमन है। अपने पैर कटने की संभावना 50 गुना ज़्यादा होती है, और हर 30 सेकंड में किसी ना किसी व्यक्ति का पैर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कटता है। और आप जहाँ को जान के आश्चर्य होगा कि यदि किसी व्यक्ति का एक पैर कटता है, एक पैर का अंगूठा या कोई चीज़, तो 1 साल में दूसरे तरफ के पैर के अंदर भी एम्पुटेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बिलोनी एम्पुटेशन होता है तो 5 ईयर्स के अंदर उसके डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पैरों की केयर सबसे ज़रूरी है। पैरों को रोज़ धोएं, धोने के बाद में पैरों पे कोई मॉइस्चराइजर लगाएं, नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलें, मोजे कॉटन के पहने, बिना इलास्टिक के मोजे पहने, जूते आगे चौड़े और ऊँचे पहने, हवाई चप्पलें नहीं पहने, पैरों में कोई रंग बदले, लाली पीलापन कालापन हो, पैरों में पसीना कम हो, पैरों में बाल कम हो, तुरंत मेरे को बताएं, वार्निंग साइंस हैं। उसके अलावा नेल को सामने से काट के साइड में से फॉइल कर लें, मोजे बिना इलास्टिक के पहने, और कभी चोट लगे तो घर पे इलाज नहीं करें, अपने आसपास जो भी डॉक्टर हो डॉक्टर के पास जाएं। कभी भी कोई
स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं करें। इन सब चीज़ों की केयर करके अपन पैरों को बचा सकते हैं। इसी तरह जॉइंट पेन बहुत कॉमन होता है, बगल और जांघों की भी सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, और इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है डायबिटीज़ में, बहुत देर से ठीक होते हैं, तो उसकी केयर करना ज़रूरी है। और इन सबसे बड़ी चीज़ होती है लास्ट में, वो होता है स्ट्रेस, टेंशन, क्योंकि हमारा जीवन तो टेंशन वाला है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी पढ़ाई की टेंशन है, कभी बुढ़ापे के अंदर बहू बेटे की टेंशन है कि साहब ऐसा खाना मिलता है, तो इन टेंशन से दूर रहें। मैंने एक चीज़ सबसे बढ़िया खोजी है, वो हमारे परिवार के लिए भी है कि परिवार का उपयोग किस तरह हम डायबिटीज़ के अंदर कर सकते हैं। एक तो डायबिटीज़ रोकने में, दूसरा यदि किसी ओल्ड एज के पर्सन को खाने के अंदर दिक्कत आती है, उससे कहें कि भाई डाइट ही लेनी, तो कहता है ऐसा बहू तो ये बनाती है, तो उस समय डॉक्टरों को भी केयर करनी चाहिए, बहू को बुलाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि तेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ से बचाना है, तो कहेगी हाँ बचाना है, तो कहना ये केयर कर। बहू अपने हस्बैंड के लिए केयर करेगी, लेकिन सास ससुर को अच्छा खाना मिलने लगेगा, तो सास ससुर का भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और लास्ट आता है सबसे बड़ी चीज़, वो है आपका डेथ। अगर आपने डेली फिजिकल एक्टिविटी करी, डाइट का ध्यान रखा, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन से अपना बचाव करा और दवाइयाँ ली, ड्रग्स वाला डी, तो इन चारों डी को डिसिप्लिन के साथ रखेंगे तो अपन डेथ से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपने केयर नहीं करी तो कोई ना कोई डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी हो जाएगी, ये भी डी से है। और डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी इनिशियल स्टेज में तो रिवर्स हो सकती है, लेकिन बाद में नॉन रिवर्सिबल है, लास्ट में फिर डेथ वाला डी है। लेकिन एक और चीज़ है, आपको डिसऑर्डर नहीं होना है, ये भी डी से है, डिसऑर्डर नहीं होना है, क्योंकि आप अकेले डायबिटिक नहीं हो। सोनम कपूर से लेकर के आपके कमर हसन तक डायबिटिक हैं, मनमोहन सिंह से लेकर के हमारे राजस्थान के कई मंत्री, इसमें भंवर सिंह पलाड़ा जी से लेकर और कई मंत्री हैं, ये सब डायबिटिक हैं। वो जब अपन नॉर्मल जीवन गुजार सकते हैं तो अपन भी अपन नॉर्मल गुजार सकते हैं, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। नियमित रूप से संतुलित आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और अपने डॉक्टर की सलाह मानते रहें, तो आप डायबिटीज़ के साथ 100 साल तक नॉर्मल जीवन गुजार सकते हैं। थैंक यू। सो मैं एक ही लाइन कहूँगी कि डायबिटीज़ से लड़ें, डायबिटीज़ से डरे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन डायबिटीज़ पर चर्चा। पेशेंट वाला सही हो गया ना, बढ़िया।